विद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राएं सांसद की भूमिका निभाएंगे और राष्ट्रहित के मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। आपको ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि भुवनेश बाल विद्यालय के इतिहास में प्रथम बार युवा सांसद का मंचन हो रहा है और हमारे लिए परम सौभाग्य की बात यह है कि वर्तमान के विधायक श्री हरि मोहन शर्मा जी, जो बूंदी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। ग्रेट मोमेंट्स आर नॉट प्लान्ड, दे आर लिव्ड टुगेदर। क्या खुशी तुम जानती हो? लोकतंत्र जनता की आवाज़ है और आज यहाँ वह आवाज़ युवा बोलेंगे। जी हाँ, यह केवल एक प्रस्तुति नहीं बल्कि संसदीय कार्यवाही का प्रत्यक्ष अनुभव है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब युवा उसकी प्रहरी बने। Tonight is not just about performances, it is about celebrating tradition, unity and the creative spark inside each of us. जी हाँ दोस्तों, आज का दिन खास है क्योंकि आज हम किताबों से निकलकर संसद की गलियारों में पहुंच रहे हैं। आज हम विद्यार्थी नहीं बल्कि नेता और संसद सदस्य हैं। So let's welcome the member of Youth Parliament with a huge round of applause and see how democracy works inside the Parliament. Attention, honorable members. The Honorable Speaker of the House is entering the chamber. I request all members to kindly rise and maintain the dignity of this House. हेलो। The House will now come to order. We shall begin this youth parliament session by invoking the spirit of our nation through our national song. Vande Bande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujalam Sufalam Malaya Jal
Honorable members, kindly be seated. Honorable members, I welcome you all to the Youth Parliament session 2025-2026. This house is a temple of democracy where discipline, debate and dignity must prevail. Today, each of you represents the voices of your people, and it is our collective duty to conduct ourselves with seriousness and responsibility. With these words, I declare the proceedings of the Youth Parliament duly open. Let us now proceed with oath taking ceremony. I request Secretary General. Honorable Speaker, with your kind permission, I shall now begin the oath or affirmation ceremony to the newly elected members of this Youth Parliament. I request members to take their oath in the sequence of their names. I now call Mr. Vanshdeep Singh Sodhi, Member of Parliament from Amritsar constituency, Punjab, to kindly come forward. Hello. Sir, oath or affirmation? Oath. In which language? Punjabi. मैं वंशदीप सिंह सोढी पार्लियामेंट ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। मैं पूरी ईमानदारी ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ मैं अपनी पार्टी प्रति हमेशा वफादार रहांगा। मैं संसद ਵਿੱਚ हर बिल ਤੇ अपनी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। मैं हर फैसले ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈਕਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪਾਲਣ मैं संविधान की रक्षा करांगा ਅਤੇ विरोधी धिर ਦੇ ਵਜੋਂ अपने फर्जा ਨੂੰ पूरी लगन नाल निभावांगा। मैं सਹੁੰ ਚੱਕਦਾ ਹਾਂ कि मैं हमेशा सच ਦੇ ਨਾਲ खड़ा रहांगा ਅਤੇ देश ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। Thank you, sir. Now I invite Ms. Nikita Raj, Member of Parliament from Thiruvananthapuram constituency, Kerala, to kindly come forward. Ma'am, oath or affirmation? Oath. In which language? Malayalam. ഞാൻ സത്യസന്ധമായി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ, ഐക്യത്തിന്റെ, സമത്വത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും. ഞാൻ ബഹുമാനത്തോടെ കേൾക്കും, ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ സംസാരിക്കും. എൻ്റെ വ്യക്തിഗത താൽപ്പര്യങ്ങളെക്കാൾ എൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും മുൻനിർത്തി നീതി, ഐക്യം, സമാധാനം എന്നിവയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കും. ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരനായിട്ട് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയിൽ സംഭാവന ചെയ്യാനും ഞാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാകുന്നു. Thank you, ma'am. Now I invite Ms. Adishri Hada, Member of Parliament from Jaipur constituency, Rajasthan. Ma'am, oath or affirmation? Oath. In which language? Sanskrit. श्री हाडा पक्षस्य सदस्यः स्वदेशस्य निष्ठां च सेवा च प्रकटयामि इति अहं निश्चितं। स्वस्वाधीनता, अखण्डता, समता, न्यायं रक्षिष्यामि। अहं भारतस्य संविधानं यथावत् पालनं करिष्यामि
तथा सत्यं च पालनं करिष्यामि। अतः अहं शपथं प्रकटयामि यत् मम कार्याणि देशस्य हिताय एव भविष्यन्ति, नागरिकेषु अधिकाराणि रक्षितानि भविष्यति च सर्वेषां सुनिश्चित भविष्यति। Thank you, ma'am. Lastly, I call Mr. Pundendu, Member of Parliament from Kolkata constituency, West Bengal. So, Sir, oath or affirmation? Oath. In which language? বাংলা। আমি পূর্ণেন্দু জানা ভারতের গণতন্ত্রের প্রতি সত্য নিষ্ঠা থাকার শপথ নিচ্ছি। আমি সর্বদা আমার দেশকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করব। আমি সবসময় আমার দেশের অখণ্ডতা ও সততার প্রতি আবেদন রাখব। Thank you, sir. With this, Honorable Speaker, the oath ceremony is successfully completed. It's my great honor and privilege to extend a warm welcome to our esteemed foreign delegate, Mr. Nick Fury from the United Kingdom, Ms. Mera Bizotto from Italy, Mr. Mohammad Hussain from Bangladesh. माननीय सदस्यगण, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ने के तुरंत ही बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कुल 207 व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु हुई। इस विमान में सवार 241 व्यक्ति और 19 अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं। यह सभा इस दुर्घटना में अपनी आत्मिक संवेदना व्यक्त करती है तथा साथ ही में हुए पंजाब में भीषण बाढ़ से हुई जन धन हानि अत्यंत दुखद है। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करेंगे। ये सभा उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखेगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। The House will now take up question hour. Honorable members may rise one by one to raise their questions. I request ministers to respond with clarity and dignity. Honorable Defence Minister, my question is direct. Why is Pakistan occupied Kashmir still under Pakistan's control? Not long ago, the Defence Minister herself thundered, "Jaan denge, lekin apna Kashmir nahi denge." Where is that resolve now, and why no visible actions? Honorable Speaker, our stand is crystal clear. POK हमारा था, है और रहेगा. But let me remind this House, war is never the first step.
We are enhancing military preparedness and building international pressure. Nation building is not about slogans, but strategy as well. But Minister, while you speak of strategy, Pakistan openly builds roads with China under the so-called CPEC project. Are we sleeping? While they strengthen their grip, Let this house and the nation hear clearly. भारत किसी को छेड़ता नहीं पर भारत किसी को छोड़ता भी नहीं. India will act at right time on our own terms, not at enemy's convenience. Honorable members, defense questionnaire is concluded. We now move to environment questionnaire, focusing on the issue of our planet and people's health. The chair recognizes opposition MP Sayam with a question on plastic ban. Honorable Speaker, my question is to the respected Minister. Sir, if plastic is banned, then why is it still used in our markets openly every day? Is the ban only on papers? माननीय सदस्य जी, मैं आपके सवाल का जवाब हिंदी में देना चाहूँगा। अंग्रेजी थोड़ी कम आती है, पर आपका सवाल मैं समझ गया। बैन सिर्फ कागज़ पर नहीं है बैन सिर्फ कागज़ पर नहीं है। सच्चाई तो यह है कि प्लास्टिक हमारी नदियों को जहर दे रहा है और हमारी ज़मीनों को बंजर कर रहा है और हमारे बच्चों की सेहत बिगाड़ रहा है। आपका सवाल सही है कि प्लास्टिक बाजारों खुलेआम बिकता है, पर भारत ने ठान लिया है कि 2026 तक सिंगल से भारत ने ठान लिया है कि 2026 तक सिंगल यूज प्लास्टिक का नामो निशान मिट जाएगा। अरे मिनिस्टर जी, आप तो हर चीज पर बैन लगाते जा रहे हो। कल को अगर रिश्तों पर भी बैन लगा दिया तो मेरी शादी का क्या होगा? हे भगवान, शादी की पड़ी है, कुछ चिंता ही नहीं है। Is this ban about reducing imports or it is just for symbolize? Plastic imports are still rupees 800 million strong, sir. So sir, where is the link to eco-friendly Make in India production? आदरणीय सदस्य जी, ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं है ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं है, ये लड़ाई हमारे आने वाले पीढ़ियों की सांसों की लड़ाई है। हम छोटे दुकानदारों की मदद करेंगे, उन्हें विकल्प देंगे और हम प्लास्टिक कचरे को कमाई और रोजगार में बदलेंगे। हमारा वादा साफ है कि प्लास्टिक पोल्यूशन से प्लास्टिक रेवोल्यूशन, कचरे से कमाई करेंगे और बच्चों को साफ जिंदगी देंगे। और ये बात ना भूलिए कि दुनिया को प्लास्टिक नहीं हराएगा, बल्कि भारत प्लास्टिक को हराकर दुनिया को बचाएगा। The questionnaire shows us that issue of defense, diplomacy and environment demand both passion and patience. This house shall now move to the next. The house will now take up 0 hour, a time for urgent matters that cannot wait. Honorable Speaker, I rise on a matter of utmost urgency, women's safety. Slogans like Beti Bachao, Beti Padhao sounds inspiring, but on the ground, the reality is harsh. Every day, headlines remind us of crimes against women. Even the UN reports that the true gender equality is still decades away. Are we giving our daughters only words, not real security? I thank the Honorable Member for raising this. Let me be clear. Nari Shakti is not optional. It is essential. From ISRO women scientists who send mission to the moon to Olympic champions who brought glory.
women are already scripting India's rise. The government launched strict laws, safety projects and schemes for education and employment of girls. Empower a woman and you empower an entire nation. This house recognizes that women's safety and empowerment are not just policies, but promises to our future. Zero-hour reminders India cannot progress until its daughters walk freely, safely and proudly. Today, I introduce 5 resolutions. First, promotion of Hindi. Second, defense strategy for POK. Third, plastic ban and waste management. Fourth, GST2 slab reform. Fifth, women empowerment and gender equality. These will now be debated in this house. Honorable members, the motion, why Hindi is not our national language? The key question is, can one language represent India's diversity or is our unity in many languages? I now invite Honorable Home Minister to open the debate. माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्यगण, सदन में उपस्थित सभी युवा साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आज इस सदन में एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूं जो केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। ये भारत की आत्मा, संस्कृति और पहचान से जुड़ा हुआ विषय है और वो विषय है हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये वही हिंदी है जिसने आज़ादी की लड़ाई में जन जन को जोड़ा। ये वही हिंदी है जिसे गांधी जी ने जनता की भाषा कहा था और ये वही हिंदी है जिसे आज देश की लगभग 44% आबादी अपनी मातृभाषा मानती है। संविधान ने हिंदी को राजकाज की भाषा का दर्जा दिया है, लेकिन अब समय की मांग है कि इसे राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए ताकि पूरे देश में भाषा पहचान बन सके। अध्यक्ष महोदय, भारत विविधताओं का देश है, अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृति, लेकिन एक देश के रूप में हमें एक भावनात्मक एकता की जरूरत है और वो एकता है हिंदी। क्या कारण है कि आज ग्रामीण भारत अंग्रेजी में होने वाले प्रशासन से खुद को दूर महसूस करता है? अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो नीति, शासन और न्याय ये सब जनता के करीब आएगा। मैं आज इस सदन में एक भावनात्मक अपील करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब सैनिक सीमा पर लड़ता है तो वो भारत माता की जय कहता है हिंदी में। जब कोई बच्चा राष्ट्रगान गाता है तो वह हिंदी में ही गर्व करता है। क्या आज ये समय नहीं आ गया है कि हम हिंदी को केवल राज्यभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा बनाकर इसका सम्मान करें? आइए साथियों, हम आज इस सदन में वह ऐतिहासिक निर्णय लें जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें कि हमने भारत को भाषा एकता की डोर में बांधा और हिंदी को उसका उचित सम्मान दिलाया। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हिंदी के पक्ष में आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हिंदी के पक्ष में महान लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है, निज भाषा उन्नति कह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के घटित नाहि किशोर। अर्थात अपनी भाषा का ज्ञान ही सभी उन्नतियों की जड़ है। बिना अपनी भाषा के ज्ञान के अपने दुख को दूर नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। So according to you, sir, has the Constitution not given us the right to respect linguistic diversity and give equal status to every language? युवा संसद के माननीय सदस्यों, आज हम अपने राष्ट्र की पहचान के एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा कर रहे हैं, भाषा। विशेषकर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? माननीय, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कुछ पंक्ति आपके सामने
प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी हमारी शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है, देश की भाषा है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हिंदी को सरकारी कार्यों में अधिक महत्व देने से देश की प्रशासनिक व राजनीतिक एकता मजबूत हो सकती है, जैसे कि हमारे बॉलीवुड संवादों से लेकर संसद की बहस तक हिंदी हमारी सांस्कृतिक पहचान को आकार देती है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार अमेरिका में कहा था कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। अगर हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाती है तो अन्य भाषाओं को अलग अलग नहीं करेगी। यह 140 करोड़ भारतीयों के ताने बाने को एक समान सूत्र में पिरोएगी। हिंदी है अभिमान हमारा, हिंदी है पहचान, हिंदी से ही जग में गूंजे भारत का सम्मान। आदरणीय महोदय, मैं अपनी साथी मंत्री का समर्थन करते हुए यह कहना चाहूँगा कि क्या एक राष्ट्र की पहचान एक साथ होगा? नहीं। आदरणीय महोदय, मैं अपनी साथी मंत्री का समर्थन करते हुए यह कहना चाहूँगा कि क्या एक राष्ट्र की पहचान के लिए एक साझा भाषा आवश्यक नहीं है? Respected sir, honorable speaker and respected members of the house. Today I rise to strongly oppose the idea of declaring Hindi as the national language of India. Honorable speakers, our nation's true strength lies in its linguistic diversity. India is not a country of one language, but a country of thousands. Over 19,500 languages and delegates are spoken here, and 22 are recognized in our constitution. Every language, whether it is Tamil, Bengali, Marathi or Punjabi, carries centuries of history and culture. To evaluate one language above all would be injustice and harmful to our unity. Moreover, a multilingual policy has been a strength, not a weakness. It allows Indians to study and work in their mother tongues while also learning Hindi and English as link languages. The system has ensured cultural prevention, social harmony and equal respect for all communities. Because, ladies and gentlemen, if we lose our languages, we lose our culture. It connects us to science, technology, trade and diplomacy. Our youth compete in Silicon Valley in international universities because of their English-speaking skills. Last but not the least, declaring Hindi as the national language of India may appear to promote unity, but in reality, it would divide us. Because true unity comes from respecting every language, every culture, not imposing one. Because it is not Hindi alone, it is not Tamil alone, it is not Bengali alone. It is the harmony of all these voices that's come together and make the proud cause we call India. Thank you. Jai Hind. Respected sir, if Hindi has become the national language, don't you think it might be create inequality in opportunities for the youth from non-Hindi speaking states? आदरणीय महोदय, क्या एक साझा भाषा होने से विभिन्न राज्यों के लोग एक दूसरे को बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जहां अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं, पहनावा और संस्कृति है, और हिंदी एक सेतु की तरह उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। अगर हम हिंदी को एक अनिवार्य शिक्षा न दे तो सभी छात्रों के लिए समान पाठ्यक्रम एवं समान शिक्षा प्रणाली लागू कर सकते हैं।
से प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग में भी बराबरी के अवसर मिलेंगे, क्योंकि प्रश्नों और उत्तरों की भाषा एक जैसी होगी। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा कि हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा अवश्य मिलना चाहिए, जिसकी वह वास्तविकता से अधिक। Honorable Speaker, I want to share my views. ভারত একটি বহুভাষিক দেশ। এখানে প্রায় 1600 মাতৃভাষা এবং 22টি সাংবিধানিক স্বীকৃতি ভাষা রয়েছে। শুধু হিন্দিকে জাতীয় ভাষা ঘোষণা করলেই অন্য ভাষাগুলির গুরুত্ব কমে যাবে। বাংলা, তামিল, কন্নড়, মালায়াম, মারাঠি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি ভাষা সমৃদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতীক। যদি হিন্দি ভাষাকে জাতীয় ভাষা ঘোষণা করা হয় তাহলে তাদের আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সংবিধান সভা হিন্দিকে রাজভাষা এবং ইংরাজিকে সহ রাজভাষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যদি আমরা হিন্দিকে জাতীয় ভাষা ঘোষণা করি তাহলে সেই ঐতিহাসিক সমঝোতার লঙ্ঘন হবে। হিন্দি জাতীয় ভাষা হলে অহিন্দিনীয় ছাত্রছাত্রী ও নাগরিকরা শিক্ষা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হবেন। ভাষা চাপিয়ে দিলে ঐক্য আসে না, বরং বিভাজন ও ক্ষোভ তৈরি হয়। উত্তর পূর্ব ভারতে এবং দক্ষিণ ভারতে বিরোধিতা বাড়তে পারে। আর আপনি বলেছিলেন 44% মানুষ এখানে হিন্দি বলে, কিন্তু সেই 56% মানুষের কি হবে যারা হিন্দি বলতে জানে না, যারা হিন্দি লিখতে জানে না, কিংবা যারা হিন্দি পড়তেও জানে না। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के सवालों का सम्मान करता हूं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारी बात पर चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ सवालों से सच्चाई नहीं बदलती। और सच्चाई यही है कि हिंदी ही वह भाषा है जो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम हर कोने में किसी न किसी रूप में बोली, समझी और अपनाई जाती है। विपक्ष ने कहा कि भारत में अनेक भाषाएं हैं, हम भी मानते हैं, पर क्या अनेकता में एकता नहीं होनी चाहिए? क्या एक देश, एक पहचान और एक साझा भाषा से अधिक मजबूत नहीं बनता? अध्यक्ष महोदय, आज हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में भारत की आवाज़ बढ़ रही है, तो क्या आज हमारी अपनी भाषा, हमारी हिंदी पीछे रह जाए? क्या हम अपनी मातृभाषा को, अपनी संस्कृति को केवल सरकारी कागजों तक सीमित रखकर राज्य भाषा बनाकर छोड़ देना चाहिए? नहीं, अब समय है निर्णय का। हिंदी को वह स्थान देना होगा जिसकी वह हकदार है, राष्ट्रभाषा का स्थान। अध्यक्ष महोदय, भाषाएं बहुत है पर पहचान एक चाहिए। भारत को भारत बोलने वाली जबान एक चाहिए। ये हिंदी केवल भाषा नहीं, भारत की आत्मा है, और इस आत्मा को आज इस सदन से एक नई पहचान चाहिए। एक भारत, एक भाषा की भावना के साथ मैं अपना पक्ष समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। The House resolved, promote Hindi widely across states for national integration while preserving and 22 scheduled languages equally. Honorable members, the next motion is on defense, Pakistan occupied Kashmir. This question before the House is, should India adopt a tougher stance to reclaim POK or continue with the diplomatic patience? I now invite Honorable Defense Minister to open the debate. अध्यक्ष महोदय, पीओके सिर्फ एक जमीन का हिस्सा नहीं, ये भारत माँ के आंचल का वो टुकड़ा है जो अभी दूर है पर हमसे जुड़ा है। हमने सिर्फ नारे नहीं लगाए बल्कि कार्यवाही भी दिखाई है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया को समझाया कि भारत के सिपाही केवल रक्षक नहीं बल्कि प्रतिशोध के प्रतिबिंब भी हैं। 2019 में बालाकोट की धरती गवाह है कि भारत के आसमान से उठती हवा आतंक के अंधेरों को राख बना देती है।
आज LOC पर खड़ा एक एक सिपाही केवल रक्षक नहीं बल्कि भारत की विजय का प्रतीक है। हमने सड़क, बंकर्स, पुल बनवाए ताकि सीमा सिर्फ रेखा न रहे बल्कि हमारे शौर्य का प्रतीक बन जाए। POK के लोग जो जुल्म सह रहे हैं, भारत ने उनके लिए हर मंच पर आवाज उठाई। यूनाइटेड नेशंस हो या G20 फोरम्स, भारत ने POK के मुद्दे को दुनिया के सामने रखा है। भारत ने हर साल शौर्य दिवस मनाकर POK के बलिदान को याद किया है ताकि देश के हर एक नागरिक को यह याद रहे कि वो मिट्टी फिर से भारत की गोद में होगी। मैं कहना चाहती हूँ, हमारे कदम धीरे हो सकते हैं पर कभी रुकेंगे नहीं। हमारी आवाज धीमी हो सकती है पर कभी थमेगी नहीं। भारत की नीति है, जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा और समय आने पर POK सिर्फ नक्शों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भारत बनकर जिएगा। जय हिंद। ऑनरेबल स्पीकर, डिफेंस मिनिस्टर कहती हैं POK हमारा था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये सिर्फ नारों में ही रहेगा या फिर कभी भारत के नक्शों में भी आएगा? क्या सिर्फ नारों से और POK की मिट्टी को याद करने से POK लौट आएगा? देश की जनता को भरोसे के साथ साथ एक साफ और स्पष्ट रोड मैप भी चाहिए। हमारे जवान 10 डिग्री की ठंड में भी सरहद पर खड़े रहते हैं, कभी सियाचिन की बर्फ में तो कभी कुपवाड़ा की गोलीबारी में। हर रोज अपना खून देते हैं, लेकिन एक सवाल अब भी अग्रित है, हमारी जमीन का क्या? जो हमारा था, हमारा है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। ऑनरेबल डिफेंस मैडम, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, सिर्फ भावनाओं में सीमा नहीं बनती, कदम उठाने होते हैं। इस युवा भारत को सिर्फ इतिहास पढ़ने का शौक नहीं, अब इतिहास रचने का इरादा है। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं अमित यादव बिहार के पटना कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ऑपोजिशन कहते हैं बस नारे हैं, पर मैं कहना चाहता हूँ, ये भारत है बॉलीवुड की कहानी नहीं। ये भारत है बॉलीवुड की कहानी नहीं, जहाँ क्लाइमेक्स सिर्फ 3 घंटे में मिल जाता है। भारत का धैर्य ही उसकी असली तलवार है। और याद रखिए, जो इंतजार करते हैं वो एक दिन विजय का गीत भी गाते हैं। माननीय स्पीकर महोदय, मेरे साथी मंत्री अमित जी ने बिल्कुल सही कहा। रास्ते लंबे जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर निश्चय पक्का हो तो मंजिल अवश्य मिलती है। हमारी सोच है न पहला वार, पर न सेना भी हमारे संस्कार। POK के लोगों के सपने भी भारत के अपने खुद के सपने हैं। और भाइयों, बात मानिए मेरी, एक वक्त आएगा जब उनके ख्वाब तिरंगे के 3 रंगों में मिल जाएंगे। मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा, हमारी सरकार ने कर भी दिखाया है। फिर बात चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की हो या बालाकोट स्ट्राइक की, हमने दिखा दिया कि भारत चुप रहकर भी सबक सिखा सकता है। और ये अपना इरादा स्पष्ट कर दिया कि POK भारत का अभिनंदन था, है और हमेशा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रुकावटें रास्ते बदल सकती हैं साहब, रुकावटें रास्ते बदल सकती हैं साहब, मंजिलें नहीं। जय हिंद, जय भारत। ऑनरेबल स्पीकर, आज इस सदन में सर्जिकल स्ट्राइक और डिप्लोमेसी की बात होती है तो मेरा मन जवानों के बलिदान से भारी हो जाता है। ये सच है कि हमारी सेना ने दुश्मन को घर में घुसकर जवाब दिया है और हमारी डिप्लोमेसी ने वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत किया है। लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि आज भी सरहद पर रोज हमारे जवान शहादत दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि ये है कि इस बलिदान का अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या सरकार के पास कोई टाइमलाइन है कि POK भारत में कब तक वापस आएगा? यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं साहब, बल्कि हमारे शहीदों के सपनों और भारत की अखंडता का सवाल है। आदरणीय स्पीकर, ऑपोजिशन टाइमलाइन पूछती है
कि पीओके कब तक भारत में वापस आएगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, टाइमलाइन तो स्कूल के होमवर्क के लिए होती है, राष्ट्र की विजय के लिए नहीं। भारत की नीति कैलेंडर की तारीख पर नहीं चलती, ये चलती है देश की सुरक्षा और सम्मान पर। और जब भारत कुछ लेने उठता है तो ना उसे अलार्म क्लॉक की जरूरत होती है, ना किसी डेडलाइन की, क्योंकि भारत का वक्त आता है और जब आता है तो इतिहास लिखा जाता है। ऑनरेबल स्पीकर, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर दिन हर रात पीओके की मिट्टी को अपना बनाने के लिए हमारे जवान अपना खून बहा रहे हैं। ये नारे और नीति तो सब अपनी जगह है और जरूरी भी है, पर हमारी जनता को जज्बात नहीं, एक स्पष्ट दिशा की जरूरत है। मैं भारत से पूछना चाहती हूँ कि वो दिन कब आएगा जिस दिन पीओके की मिट्टी पर हमारा तिरंगा लहराएगा। मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराती हूँ कि वो दिन कब आएगा जिस दिन पीओके की मिट्टी पर हमारा तिरंगा लहराएगा। आदरणीय सभापति महोदय, अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि देश की सुरक्षा और सम्मान के साथ भारत कभी समझौता नहीं करता। पीओके को लेकर हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। न केवल सीमा की रेखा बल्कि वहाँ के लोगों के दिल भी भारत के साथ जुड़ेंगे। ये सफ़र भले ही लंबा हो लेकिन हमारी मंजिल पक्की है। और जब वो दिन आएगा तब तिरंगा सिर्फ पीओके की धरती पर ही नहीं, वहाँ के लोगों के दिलों में भी लहराएगा। The House resolved, पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, न केवल शक्ति से, न केवल शब्द से, बल्कि एकता और नीति से। पीओके एक दिन भारत के साथ जुड़ेगा और जब जुड़ेगा तो वहाँ की जमीन नहीं, वहाँ की आस्था, वहाँ की आशाएं सब भारत का गीत गाएंगे। Now the next motion is environment and plastic ban. The question before this house is vital. Can India truly eliminate single-use plastic, or will convenience keep defeating conservation? I now invite Honorable Environment Minister to open the debate. थैंक यू सर। प्रकृति हमेशा हमसे बात करती है, पर अक्सर हम इसकी आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं। ऑनरेबल स्पीकर, रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस, प्लास्टिक पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट का मुद्दा हर घर, हर गली और हर शहर से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हर दिन लगभग 25,000 टन प्लास्टिक वेस्ट निकलता है और इसमें से एक बड़ा हिस्सा ओपन डंपिंग और बर्निंग के थ्रू खत्म होता है, जो कि हवा और ज़मीन दोनों को जहरीला बनाता है। सोचिए, अगर यही प्लास्टिक रिसाइकल हो तो हम 5 करोड़ से ज़्यादा इको फ्रेंडली कैरी बैग्स या 10,000 किलोमीटर और सड़क बना सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी ने 2025 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का संकल्प लिया है। उसके लिए हमारा प्लान है, पहला, ग्रेजुअल एंड फेस्ड बैन टिल 2026, जिससे मार्केट और वेंडर्स को एडॉप्ट करने का टाइम मिले। दूसरा, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स, छोटे वेंडर्स को जूट बैग्स और लो इंटरेस्ट लोन्स। तीसरा, वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन, जैसे केरला और पुणे के कुछ सिटीज ऑलरेडी वेट ड्राई वेस्ट सेग्रीगेशन से प्लास्टिक फ्यूल और ब्रिक्स बना रहे हैं। यह सिर्फ पॉलिसी नहीं, एक आंदोलन है। हर नागरिक के पार्टिसिपेशन के बिना यह सफल नहीं होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, समय दूर नहीं जब प्लास्टिक का अंधेरा खत्म होगा, समय दूर नहीं जब प्लास्टिक का अंधेरा खत्म होगा और प्रकृति का प्रकाश घर घर चमकेगा। Honorable Speaker, Delhi alone makes 1,000 tons of plastic waste daily. Warsaw Beach volunteer remove 20 million kg in 3 years. If citizen can do it, the government must too. If we delay, तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा
प्लास्टिक बोतल्स होंगी। Honorable Speaker, ban is good, but sudden ban will hit chai walas, vendors and 3 lakh informal workers. Alternatives are costly. Without affordable option, ban is equal to loss of livelihood. सर सॉल्यूशन तो रेडी है, जैसे क्लोथ बैग्स, जूट बैग्स, इको फ्रेंडली प्लेट एंड स्पून्स। प्लास्टिक रोड भी अब तो 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा बन चुके हैं। सिर्फ सब्सिडीज और इनोवेशन चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को सेफ और इकोनॉमी को स्ट्रांग बना सके। रियलिटी क्लियर है, अगर आज चेंज करोगे तो कल क्लीन वाटर मिलेगा, वरना कल माइक्रो प्लास्टिक भी पीना पड़ सकता है। The House resolved to phase out single-use plastic by 2026, support vendors with eco-alternatives, and launch a nationwide awareness campaign for waste management. Honorable members, moving ahead with our next motion is GST reforms towards a 2-slab structure. The question before this House is clear. Will simplifying GST bring real ease of doing businesses, or will it widen the revenue gap for states? I now invite Honorable Finance Minister to open the debate. Thank you, sir. India has seen goods and service tax GST became one of the biggest tax reforms since independence. Today, GST contributes around 60% of the state revenue. I rise to present the next leap forward, the next generation GST reform 2025. The group of minister recommends a 2-slab system, 5% for essential and mass consumption items, 18% for other goods and services, and 40% special rate for luxury and sin goods. Why this reform is important? In financial year 2023-24, India's GST collection crossed rupees 18.1 lakh crore. Yet, compliance remain complex. MSMEs spend an average 120 plus hours filling GST returns. With simpler GST, compliance will reduce, demand will rise, and our economy will get a much needed boost. और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सिर्फ GST नहीं है, यह है गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन। ऑनरेबल स्पीकर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी के प्रपोजल को स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ। उदाहरण के रूप में एक छोटा टेक्सटाइल ट्रेडर सूरत में 12% और 18% की कंफ्यूजन में हमेशा उलझता रहता। अगर सिर्फ 5% और 18% के स्लैब्स होंगे तो उसकी फिलिंग और प्राइसिंग दोनों क्लियर होंगे। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहता है कि इंटर स्टेट के बाद जीएसटी में 30% ग्रोथ हुई है। अब जीएसटी रिटर्न भरना इतना आसान होगा कि व्यापारी बोलेंगे अब तो जीएसटी रिटर्न भरना आसान है, लेकिन तत्काल की टिकट लेना मुश्किल। ऑनरेबल स्पीकर, इंटेंट अच्छा है पर ग्राउंड रियलिटी बहुत कठिन है। एक्सपर्ट्स वार्न कि अगर 12% स्लैब हटाकर सब कुछ 5% पर शिफ्ट कर दिया गया तो एस्टिमेटेड 1.5 से 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। स्टेट जैसे पंजाब, केरला, बिहार heavily depend on GST revenue, almost 50% of their tax income. ऑलरेडी स्टेट के पास हेल्थ और एजुकेशन के लिए पैसा कम है। अगर टाइमली कंपनसेशन मैकेनिज्म नहीं हुआ तो वेलफेयर स्कीम्स सफर करेंगी। फाइनेंस मिनिस्टर जी कह रही हैं ये दिवाली गिफ्ट है, पर मुझे डर है कि कहीं ये गिफ्ट के साथ EMI ना आ जाए। ऑनरेबल स्पीकर, सर आपने रेवेन्यू लॉस की बात की, लेकिन कंजप्शन का मल्टीप्लाई इफेक्ट देखिए। पैकेज फूड, बेवरेजेस जो 12% में था, अगर 5%
डिमांड डबल हो सकती है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन और जॉब्स भी बढ़ेंगे, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टैक्स कलेक्शन भी रिकवर करेगा। डिलॉयट इंडिया का एक एनालिसिस कहता है कि सिंप्लीफाइड जीएसटी स्लैब्स could reduce tax evasion by 15 to 20%, मतलब ब्लैक मनी कम और गवर्नमेंट की किट्टी फुल। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ, ये रिफॉर्म सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये है एक ट्रस्ट का सिग्नल कि इंडिया एक प्रिडिक्टेबल और वेस्ट फ्रेंडली इकोनॉमी बन रहा है। ऑनरेबल स्पीकर, माय क्वेश्चन इज टू द फाइनेंस मिनिस्टर जी। फाइनेंस मिनिस्टर जी कह रही हैं अब जीएसटी सिर्फ 2 स्लैब में है। अरे वाह, जीएसटी घट गई, लेकिन बिल का झटका तो अभी भी है। ये जनता अभी भी पूछ रही है, जनता अभी भी पूछ रही है, 2 स्लैब से क्या दाल, आटा, तेल सस्ते हुए क्या? दुकानदार अब भी कैलकुलेटर पकड़कर माथा खपा रहा है, और ग्राहक अब भी पूछ रहा है कि 2 स्लैब से क्या इतना टैक्स क्यों? ये सरकार कहती है, ये सरकार कहती है सरल बनाया, लेकिन असल में हुआ क्या? 4 खानों की टेबल मिटाकर 2 खाने की कर दी, और खाने वाले की थाली में कुछ सस्ता नहीं हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर जी, जनता को राहत चाहिए, कोई सरकार की पावर पॉइंट की स्लाइड नहीं। मेरा भी एक सवाल है मैडम, पेट्रोल और डीजल अभी भी जीएसटी के बाहर है, तो जब पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए पर लीटर से ज्यादा है तो क्या आप गारंटी देती हैं इसे भी जीएसटी के अंदर लाया जाएगा? मेरे सवाल का जवाब दीजिए फाइनेंस मिनिस्टर जी। Ma'am, I think you missed the basics of GST. Not only you, many of the others here too. तो देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, रेवेन्यू लॉस एक जोक नहीं है। अगर हम आज ही पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर डाल देते हैं तो स्टेट के पास फंड कहाँ से आएगा? हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स सब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो बैलेंस जरूरी है। इसीलिए फिर इम्प्लीमेंटेशन और स्टेट कंपेंशन मैकेनिज्म रखा गया है। और जहां तक बात रेवेन्यू की हो रही है, जब इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रही है, तब रेवेन्यू का ग्राफ भी विराट कोहली के 6 की तरह सीधा और शानदार ही ऊपर जाएगा। The House resolved implement in this 2-slab GST reform in phases, concern state on fiscal compensation and monitor economic impact carefully. Honorable members, today's motion is women empowerment and gender equality. The question before this house is simple but significant. Is India truly empowering women or is still a long journey? I now invite Honorable Minister to open the debate. Honorable Speaker, I rise before this September House to speak on a matter of utmost importance, women empowerment. We all acknowledge that women are not only the foundation of families, but also the backbone of society and the nation. It is imperative to first empower our mother, sister and daughters. Today, women are excelling in every sphere, education, science, sports and beyond. अब मैं सांसद के सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरी बात पर गौर फरमाएं। स्वामी विवेकानंद once said, "There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved." और आज का भारत उसी विचार को साकार कर रहा है। Now, today India's female literacy rate is 71.5% according to data of NFHS 2021, and it raised from just 8%, which was at the time of independence. Girls now form 49% education involvement. From Chandrayaan 3,
woman scientist to Avni Chaturvedi, India's first female fighter pilot. Women are scripting India's success story. और हमारे संविधान ने औरतों को बराबरी का हक दिया है। आर्टिकल 40 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन। और आज सरकार उस सपने को जमीनी हकीकत बना रही है। टुडे इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स दैट ड्रीम, फ्रॉम किचन टू कॉकपिट, फ्रॉम पार्लियामेंट टू प्लेग्राउंड। ये है एक नवीन भारत, एक शक्तिशाली भारत। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं साहब, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। The Honorable Minister spoke of schemes and numbers, but let us face the ground reality. NCRB 2023 reports one crime against women every 6 minutes. Gender pay gap, 28% women earn less for the same work as per men. Women workforce participation only 23%. Parents still fear when their daughters step out at night. Policies are made, slogans are given, लेकिन सच्चाई यह है कि सेफ्टी कमजोर है और इक्वालिटी अभी भी अधूरी है। Empowerment is not about posters, it is about freedom. Until a girl can walk freely at midnight, India cannot claim its true empowerment. Honorable Speaker, the opposition claims is disheartening. They conveniently ignored the multifaceted approach of our policies. The government has launched several schemes like Beti Bachao, Beti Padhao, Ujjwal Yojana and Mission Shakti to ensure women's health, education and safety. Reservation in local bodies has given them a strong voice in decision making. यहाँ मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं साहब, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। Empowerment is not just about law, it's about shifting culture, mindsets, a process that takes time and consistent efforts. We are not just building schools, we are building a more equitable society. Thank you. There is no tool for development more effective than the empowerment of women. Honorable Speaker, while my respected friend highlighted various government initiatives and schemes, but true empowerment does not come from merely schemes or slogans. The ground reality paints a different picture. Reservation in local bodies may have given some women a voice, but most often these positions are indirectly controlled by male family members, limiting true empowerment. Crimes against women are still drastically high, and education dropout rates for girls in rural areas remain a serious concern. True empowerment doesn't merely come from slogans or schemes, but from the change in society's attitude. Unfortunately, social evils like dowry, child marriage, workplace harassment, and domestic violence still continue to haunt women. Therefore, Honorable Speaker, the intent might be noble, but as Albert Einstein once said, the world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing. We must accept this reality before celebrating the success. Thank you. Bharat Mata ki Jai. Excuse me, sir. Change is not a miracle. It is a journey. India today has the highest number of women commercial pilots in the world.
women leading army, judiciary, corporate boardrooms. When Chandrayaan 3 touched the moon, it was led by women scientists. ये अपवाद नहीं है, ये नए भारत का चेहरा है. These are not just expectations, these are the face of new India. For centuries, women have been confined to the background, expected to remain silent, submissive and dependent. But times are now changing. Women empowerment means to give them right to make their own choices, the freedom to pursue education and the respect they deserve in every sphere of life. To support my statement, मैं यही कहना चाहूँगा कि नारी को शिक्षा, सम्मान और अवसर दो, उसके सपनों को पंख और सफर दो. जब उठेंगी वो कदम से कदम मिलाकर, जब उठेंगी वो कदम से कदम मिलाकर, भारत चमकेगा संसार को दिखाकर. योजनाओं से नहीं, सोच से आता है सशक्तिकरण. नारे बदलने से नहीं, व्यवहार बदलने से बदलेगी महिलाओं की स्थिति. महिला सशक्तिकरण कागजों पर नहीं, जमीनी हकीकत में दिखना चाहिए साहब. सच्चा सशक्तिकरण सिर्फ वादा नहीं, जिम्मेदारी है साहब, जिम्मेदारी. नीतियां तभी सफल है जब समाज की मानसिकता बदले. महिला सशक्तिकरण सिर्फ वादा नहीं, जिम्मेदारी है साहब, जिम्मेदारी. Honorable Speaker Sir, respected members of this House, I am proud to present the government's unwavering commitment towards women empowerment. Our vision is clear. There must be a society where each and every woman and a girl must realize her full potential. We have enacted landmark policies based on 3 key pillars: education, economic independence and safety. Our Empower Her initiative has led to a gradual 15% rise in female literacy rate over the last 2 years. Moreover, our micro-leading schemes have helped over 50,000 women to start their own businesses, turning them into job creators. These are not just stats, these are the stories of transformation. We believe that an empowered women is the only foundation of a prosperous nation. Honorable Speaker, I thank the Prime Minister for his words, but I must respectfully disagree. Sorry sir, disagree. The government paints rosy pictures of women empowerment through policies, schemes and catchy initiatives. But let us look beyond the statics and slogans. First, policies on paper do not guarantee empowerment in reality. A 15% rise in female literacy rate means little if educated women are still equal opportunities in workforces, are still underpaid and still unsafe while commuting. Literacy without liberty is nothing but a hollow number. Most important, true empowerment cannot be ended by a government. It must be created by us as society as a whole. आखिर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, नारी सम्मान है जरूरी, तभी प्रगति होगी पूरी. आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, क्षमा कीजिएगा, मैं भी आपकी बातों से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ. आज मैं इस संसद में एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ. ये समाज कहता है कि बेटा बेटी एक बराबर है, ये समाज कहता है कि बेटा और बेटी एक बराबर है, तो फिर बेटियों की सुरक्षा पर आज भी इतनी चिंता क्यों जताई जाती है? मेरे साथी मंत्री ने जो प्रश्न किया है उसके सहयोग में मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूँ. समाज जोर जोर से कहता है कि बेटा बेटी बराबर है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है साहब. जब बेटियां बाहर जाती है तो घर वालों का दिल कांपता है. बार बार फोन लगाया जाता है, उसकी सुरक्षा को लेकर डर बना रहता है. यही चिंताएं बताती है कि बेटियों को बराबरी
सिर्फ शब्दों में मिली है, असल जिंदगी में नहीं। अगर सचमुच बेटा बेटी बराबर है तो सुरक्षा, अवसर और आजादी तीनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जब तक बेटियां बिना डरे पढ़, काम और जी नहीं सकती, तब तक बराबरी अधूरी है। सच्ची समानता तब होगी जब हम बेटियों को सिर्फ सुरक्षा नहीं, मानसिक स्वतंत्रता भी देंगे। मैडम, मैं भी आपके बातों पर कुछ अपने विचार रखना चाहती हूँ। ये डिबेट तो चलती आ रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज मैटर, बट एम्पावरमेंट begins at homes. Parents must trust daughters. Boys must learn respect, not dominance. Society must give women space to lead. सच्चा सशक्तिकरण तभी होगा जब सरकार और समाज दोनों मिलकर एक महिला को उसकी असली आजादी देंगे। क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य केवल सरकार का है? नहीं, यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है। हमें महिलाओं को सुरक्षा देनी चाहिए, परिवार को भी बेटियों को प्रोत्साहन करना चाहिए और समाज को भी अपनी रूढ़िवादिता तोड़नी होगी और इसी के साथ साथ महिलाओं के उद्यमित कार्य में साथ देना होगा। असली सशक्तिकरण तभी आएगा जब समाज और सरकार दोनों की सोच बदलेगी। The House resolved. We have heard both sides, progress in literacy, politics, jobs, but also challenges of safety, pay gap and bias. Laws can open doors, but mindsets must walk through them. The motion before the House, this House believes in the role of government in ensuring women empowerment and gender equality. Honorable members of the Youth Parliament, we now move to the most decisive moment of today's session, voting on the resolution placed before this House. All those in the favor of resolution on language, on defense, environment, GST reform and women empowerment. The majority of the House has voted in favor. The resolutions stand duly adopted. This Youth Parliament records its appreciation for the passion, intellect and responsibility shown by its young members. Speaker sir, today's Youth Parliament proves only eternal truth. सही सवाल ही सही जवाब तक ले जाता है. When young voices rises with courage, democracy shines brighter. This House has shown that disagreement is not the division, it is the strength of our republic. Debate is the oxygen of democracy, and today we all breathe it deeply. Honorable Speaker sir, respected members of this House and my dear Shibirvasis. The world often says youth are the future, but today I say with pride, youth are also the present. We don't just wait for tomorrow, we are building it today. From innovation to governance, from classrooms to global stages, युवा देश को चलाते भी हैं और संभालते भी हैं. This youth parliament is not just a mock session, it is a mirror of India's tomorrow, and that tomorrow looks strong, united and unstoppable. Honorable members, before we adjourn, let us rise together to honor the spirit of our nation. Please stand for the national anthem. मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रगान के सम्मान में एक बार खड़े हो जाएं. Start.
This house is adjourned now. Jai Hind. Thank you.